नानक दे कर हथ। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरण करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयालै दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवै। जेता जियो पिन सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। नानक फिकै बोलिया तन मन फिका होए। फिको फिका सदियै फिके फिकी सोए। फिका दरगह सट्टियै मूँह तुक्का फिके पाए। फिका मूर्ख आखियै पाना लह सजाए। फिका दरगह सट्टियै मूँह तुक्का फिके पाए। फिका मूर्ख आखियै पाना लह सजाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी की जो लड़ीवार कथा आपां नूं प्राप्त हो रही है, तिस दे तहत आसा की वार दी 20ਵੀਂ पौड़ी दे नाल जो श्लोक आए हैं उन्हां विचों पहले श्लोक का पाठ आप जी ने सरवण किया है। सतगुरु जी के पावन बचन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 473 ते सुभाएमान हैं। इन्हां पावन अमृत बचनां दे विच गुरु पातशाह जी सानू की उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। जो मनुख का जीवन है ये भगती दे विच सफल क्यों नहीं हुंदा। हालांकि मनुख धार्मिक कर्म करता है पर फिर भी ये भगती दे विच सफल नहीं हुंदा, इनू सफलता नहीं मिलती। उहदा कारण की है? रस नहीं बनता, कोई खेड़ा नहीं बनता। की कारण है? सहब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, जिथे आपां नाम जपना है, बाणी पढ़नी है, उत्थे साडे जीवन की शरीर की कुछ मर्यादा है, उसनूं भी धारण करना पवेगा। नहीं तां जपिया होया नाम, पढ़ी हुई बाणी, धार्मिक कर्म करके भी मनुख बेरसा रहिंदा है, बल्कि दुनिया दे विच उसनूं कोई खुशी खेड़ा आनंद प्राप्त नहीं हुंदा। ते दुनिया विच भी
ਉਹਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਰਸਨਾ ਜੀਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਸਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਨਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸ ਵੰਡਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾਪਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਰਸਨਾ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਰੱਬ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂਗਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਭਾਖਿਆ ਕਹੀਏ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ। ਭਾਉ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵਿਖਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌੜਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲੋਸੋ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹਉ ਸੰਭਲ ਤੱਕੀ ਜੀ
ओ कदे ना बोले कौड़ा। कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवानै, औगण को ना चितारे। वाहिगुरु कदे नहीं कौड़ा बोलदा, वो सदा मिठा बोलदा है। भगत नामदेव जी भी कहते ने, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मुगोल। हे परमात्मा तेरी पग बड़ी सोहनी बनी हुई है, तेरे बोल बड़े मिठे ने, सुनदियां अंदर नूं ठंड पै जाती है। जदों रब दे बोल आपां बाणी सुनते हाँ तो कोई प्यार विच सुनावे ना बाणी, तो वेखो बाणी सुन के बंदा किन्ना भी कलपिया होवे उन्होंने सुख मिल जाता है, शांति आ जाती है, टिका आ जाता है। इस तरह होर भी गुरबाणी विच बहुत सारे प्रमाण हैं। रब की भाषा है प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा नूं हर कोई समझदा है, तो रब नाल जे जुड़ना है तो सानू वो भाषा सीखनी पवेगी। जिमें आपां विदेशों विच वेखदे हां बच्चे गए ने, वो ਜਿਹੜੇ भी मुल्क विच गए ने उत्थे जिहड़ी भाषा प्रधान है वो भाषा उन्होंने सीखनी पैंदी है। जे उस इलाके विच उस मुल्क विच कामयाब होना है ना तो वो भाषा सीखनी पवेगी। इस तरह जे रब दे देश विच जाना है, रब नूं मिलना है, रब नाल सांझ पानी है तो रब वाली बोली सीखनी पवेगी। तो आपां वेखदे हां जिन्हां नूं इत्थे कई जिहड़े पहलां गए ने, जिन्हां नूं ऊड़ा एड़ा भी नहीं सी आउंदा, अनपढ़ सन पर चले गए बाहर भले समय विच, वो भी उत्थों की भाषा नूं बड़ा पटर पटर बोलते हैं, क्योंकि खिच सी भी मैं इत्थे कामयाब होना है, मैं इत्थे सफल होना है, मैं अपना परिवार छड्ड के आया इन्नी दूर, तो उत्थों की भाषा वो सीख के ते उत्थे कामयाब होए बैठे ने। इस तरह जे आपां भगती मार्ग विच परपक्क होना है, भगती मार्ग विच सफलता लैनी है, तो सानू रब वाली भाषा सीखनी पवेगी। उहदे तो बिना बननी नहीं गल। तो जे आपां सफल होने की इच्छा रखते हैं तो फिर तो कोई औखी गल नहीं है। जिन्होंने कोई बहुता नहीं ज्ञान सी वो भी जाके बाहरले मुल्कों में वो भाषा सीख के उत्थों दी सफल होए ने। इस तरह जे रब नाल प्यार है, वाकिया ही भगती का रस लेना है, रब का मिलाप चाहते हाँ, रब वाली भाषा है प्रेम की भाषा। प्रेम अपने जीवन में लियावना पवेगा, प्यार लियावना पवेगा। तो प्यार जदों मनुख के अंदर आउंदा है तो उसकी रसना तो जो कुछ साडे अंदर है वो साडी रसना बयान कर देंदी है, वो साडियां अखां बयान कर देंदियां ने, वो साडा शरीर बयान कर देंदा उस चीज़ नूं जो साडे अंदर है। सब नालों ज़्यादा बयान जो करता है वो साडी रसना है, जो भी साडे अंदर है। हालांकि साडियां अखां दे इशारे तो भी पता लग जाता है, मत्थे की त्योड़ी तो भी पता लग जाता है, हत्थां पैरां की हलचल तो भी पता लग जाता है, पर सब नालों ज़्यादा पता लगता है रसना तो। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते जिहड़ी तेरी रसना है, मनुख भगती मार्ग विच सफल क्यों नहीं होया, इहदे रसना विच फिक्कापन क्यों आ गया। भावें गुरुद्वारे आउंदा रहा, भावें ये मंदिर विच मस्जिद विच जांदा रहा, पर इहने रब की भाषा नहीं सीखी, इहने प्रेम नहीं सीखिया, अपने जीवन विच प्यार नहीं लाया। तो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी कहते ऐसे मनुख की रसना पता है किस तरह की हुंदी है, ਉਹਦਾ रब नाल किवें मिलाप होवेगा। जिहड़ा बंदा इन्ना ज़्यादा कोड़ा हो जाए, जदों मुख तो बोलदा है कोई चज की गल नहीं बोलनी, लोकां विच भी मशहूर हो जाता है, कहंदे जदों भी बोलदा माड़ा ही बोलदा है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी कहंदे तुमी तुमा विस अक धतूरा निम फल, 6 चीज़ों का इत्थे जिक्र किया गुरु नानक पातशाह जी ने। ये 6वें
चीज़ां अत दियां कोड़ियां ने। तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल। तुम्मी भी कौड़ी, तुम्मा भी कौड़ा, विस जिहड़ी जहर है वह भी कौड़ी है, अक भी कौड़ा, धतूरा भी कौड़ा, निम दा फल भी कौड़ा। ये सारियां जहर दियां भरियां पईयां ने। पर महाराज कहंदे इन्हां नालों भी खतर है, खतरनाक है। किहड़ी चीज़ है? वह है बंदे दी जबान। बंदे दी जबान इन्हां नालों भी ज़्यादा जहरीली है। बड़े आराम नाल बंदा बैठा सी, एक बोल बोलिया, ਉਹਦੇ तन मन नूं अग ला के रख दी, वो वाले खान लग पिया, भड़कन लग पिया। बड़े टिकाव विच बैठा सी, बस होर नहीं, यही बोल जिथे भी जाता इस तरह के ही बोल बोलता है। तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल। अगे बचन आखिया महाराज ने, मन मुख वसै तिस जिस तू चित ना आवी। ये सारियां जहरां ओहदी रसना दे विच ने। इन्ना कुड़त्तण भरिया बंदा जिन्हों रब चेते नहीं आया। तो आपां कहांगे असीं ते गुरुद्वारे जाने आ, रोज़ असीं ते मंदिर विच मस्जिद विच जाने आ, परमात्मा दे घर जाते आ, जाते जरूर है, पर वो भाषा नहीं सिੱਖੀ रब वाली। वो भाषा है प्रेम दी। दसम पातशाह भी कहते जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उत्थे महाराज ने यह नहीं लिखा भी तुसीं इन्ने पाठ करोगे तो रब नूं पा लोगे, भी दिहाड़ी विच 500 पाठ कर लो तो तां पा लोगे, जां इन्ना पाठ कर लो जां करा लो तां नहीं। महाराज कहते प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। क्योंकि रब की भाषा है प्रेम। तो किसी भी मुल्क में जे सफल होना है उत्थों की भाषा सीखनी पवेगी। इस तरह जे आपां रब दे देश जाना, रब नूं मिलना है, तो रब वाली भाषा प्रेम दी। ते एक गल होर कमाल दी है, रब की भाषा सारियां नूं समझ आउंदी है। आपां वेखीए जिहड़े वक्खो वक्खरे मुल्कां दी, बल्कि आपां नूं अपने मुल्क दीयां सारियां भाषा दी समझ नहीं। हिंदुस्तान में जिहड़ियां बोलियां बोली जांदियां ने, आपां नूं पूरी कोई अपने सामने बोले पता नहीं लगेगा। कोई उड़िया विच की कह रहा है, बंगाली विच की कह रहा है। पर रब की भाषा जदों कोई प्रेम विच कुछ भी बोले, उहदे बोलण तो भावें उहदे अल्फाज समझ नहीं आए, पर उहदे चेहरे तो वो प्रेम झलकिया तो पता लगा भी ये बंदा मेरे नाल प्यार का व्यवहार कर रहा है। प्रेम की भाषा रब की वो सारियां नूं समझ आउंदी है। साहिब सच्चे पातशाह कहते जिहड़ा फिक्का बोलना है, जिहड़े साडे बाणी दे विच 10 पाप दसे ने, 10 पाप सदा दसारा। साडे तन दे 10 पाप दसे ने, कल्ली रसना दे 4 पाप हन। कल्ली रसना दे 4 पाप ने। फिक्का बोलना, कड़त्तण भरे बोल बोलने, ये भी रसना का एक पाप है। झूठ बोलना, व्यर्थ बोलना, निंदिया करनी, ये 4 पाप ने रसना दे। ते कल्ली रसना दे फिक्का बोलण नाल ही की सज़ा मिलती है। इतिहास दे विच एक साखी आउंदी है। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय एक मदारी, उन्हें एक भालू जंगल विचों पकड़िया, उन्होंने पालिया, सिखाया। आनंदपुर साहिब के किते नेड़े दे पिंड विच रहण वाला सी वो बंदा मदारी। उन्हें सिखाया वो रिछ। जदों रिछ ऐन सिख गया तो उन्हें आखिया भी चलो अज तो यदा तमाशा दुनिया नूं विखाया करना है, पहला क्यों ना गुरु घर तो ही शुरू करिए। जिवें आपां कोई भी काम करते हैं कहते चलो गुरु घर मत्था टेक लीए। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दरबार सजिया तो वो लैके आ गया रिछ नूं।
ਜਦੋਂ ਆਇਆ तो उन्हें बेनती की, ਜਿਹੜੇ दरबानची सिंह खड़े सन, कहंदा भी दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को बेनती करो, मैं बड़ी मेहनत नाल ये रिछ नूं, ये बच्चा छोटा जिहा लिआंदा जंगल चों पकड़ के इहनूं सिखाया है, तो ये करतब हुण मैं करके दुनिया नूं ते अपना पेट पालिया करना, रोटी कमाया करांगा। पर मेरी एक भावना भी मैं पहलां शुरुआत इत्थों करना चाहुंदा भी गुरु महाराज जी किरपा करन, आशीर्वाद दे देण, तो मैं महाराज जी नूं इहदा तमाशा विखाना चाहुंदा। वो ਸਿੰਘਾਂ ने जाके महाराज जी नूं आख्या भी इदां कोई मदारी आया महाराज, वो तमाशा दिखाना चाहुंदा है। पातशाह कहंदे कोई नहीं, दीवान की समाप्ति तो बाद उन्होंने तैनूं टाइम दिता जाएगा। दीवान समाप्त होया, सारी संगत भी हैरान कि महाराज ने इहनूं क्यों इस तरह का करन दा टाइम देता है। उन्हें आके नमस्कार की, आग्या मांग के शुरू कर दिता। वो जिहड़ा रिछ है बड़े कौतक अजीब कर करके विखांदा है। जदों करदा है तो सारियां संगतां हसन लग पईयां, सारे खिड़खड़ा के हसदे ने। भाई कीरतिया दसम पातशाह के सीस ते चौर झुला रहा, सेवा कर रहा है, वो भी हसन लग पिया। हसदियां हसदियां चोर हाथ विचों छुट के थले डिग पिया, चुकिया संभालिया। तो महाराज दसम पातशाह कहते भाई कीरतिया भी तू ना हस। कहन लगा महाराज ये रिछ करतब ही ऐसे कर रहा, वेखो सारिया संगतां दा अपने आप ही हासा निकली जा रहा है, तो मैनू क्यों रोक रहे हो। महाराज कहते ये तेरा पिता शोभा राम है। वो कहते महाराज मेरा पिता, होश उड़ गए भी वो तो बड़ी सेवा करता रहा गुरु घर, बड़ा लम्मा समा सेवा की। महाराज जे सेवा करन दा ये फल मिलना है तो फिर सेवा करन दा की लाभ, मैं नहीं सेवा करता। फिर दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते पहला सुन लै भी इहनूं रिछ दी जूनी क्यों मिली है। दीवान की समाप्ति तो बाद जदों प्रशाद ताना, उहदा सुभाअ सी बड़ा फिक्का बोलण दा, क्योंकि बंदा आखा आप आउंदे हाँ गुरुद्वारे बाणी पढ़ते हैं, आप अपना सुभाअ नहीं त्यागते, यतन नहीं करते भी अपने सुभाअ नूं त्याग दीए, माड़ा सुभाअ त्याग दीए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਸੀ कि होर सेवा बड़ी करदा सी, बाणी भी पढ़दा सी, पर ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਹਲਾ पै जांदा, फिक्का बोलन लग जांदा सी। ते कोई प्रसाद लैण आ गया, वो जल्दी वेसी जिमींदार किसान गुरु का सिख, वो मैले चले कपड़े पाए हुए अगे होया तो प्रसाद बन रहा सी। कहंदा बई ਉਹਦੇ ਵੱਲ इग्नोर करता, उन्होंने देखिया नहीं ਉਹਦੇ ਵੱਲ। तो सत्संग जदों इदा होया, वो 2-3 वारी अगे होया, तो भाई शोभा राम नूं फिर पिछे देखिया ना करे। तो वो जदों ऐसा होया तो वो फिर अगे हो गया भी मैं जाना, मेरे गड्डे बाहर खड़े ने, मैनूं जल्दी है, प्रसाद दे दो। कहता भी टिक के बह जा, क्यों रिछ वांग टप्पी जांदा। हुण उहनूं भी जल्दी सो गुस्से में वो भी आ गया, कहता बई रिछ वांग मैं नहीं करता, विहार रिछ वांग तां तूं कर रहा है, तू ही रिछ दी जूनी पवेंगा। बस कहते वो इस करके कि ये फिक्का बोलन करके इनू ये रिछ दी जूनी मिली है। ये सेवा करता रहा, बाणी पढ़दा, तां ही इन्हें अपना नाटक किसी होर अगे दी इहदी प्रदर्शनी हुई, ये पहला साडे कोल ही आया है। वो रिछ फिर महाराज ने उन्होंने मूँह मंगी कीमत दे के खरीदिया, अपना सीत प्रसाद दे के उहदा उधार किया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिक्का बोलन का इन्ना वड्डा पाप मनुख सेवा करके भी, बाणी पढ़ के भी देखो निखित जूनी में चला जाता है। बाणी का फल तो मिलता है, देखो सेवा की महाराज कहते सफल नहीं गई, पर जिहड़ा कर्म है, जिहड़ा महाभारत का जंग होया उहदे विच तकरीबन दसदे ने भी 40-45 लाख बंदे की मौत हुई है। 18 कूणियाँ दसदे ने, एक कूणी दे विच तकरीबन 2.5 लाख बंदा जी होंदी है। तो वो महाभारत का जंग पता किहदे पिछे होया सी? द्रौपदी ने अपनी रसना तो फिक्का बोलिया सी। जदों इन्हां ने अपना
ਹਸਨਾਪੁਰ ਵੱਡਾ ਵਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਮਹਿਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਠੀ ਦੀ ਚੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੰਗ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਬੈਠੀ, ਅੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਨਾ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੱਕਾਪਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਿੱਕਾਪਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਲੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਲੀ ਮਾਚਿਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸੜਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਰਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਫਿੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਰਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਰਸੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਕੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਫਿੱਕਾ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ, ਜੁੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।